जी स्टार्ट कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم صفات اللازمہ متضادہ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے والی سلائیڈز جو ہم نے کور کی تھی وہ اطباق اور انفتاح تک تھی، تو انشاءاللہ آج ہم اطلاق اور اسمات سے شروع کریں گے۔ تو میں اس سلائیڈ پر چلی جاتی ہوں۔ اچھا، اسمات جو ہے، اسمات اور اطلاق یہ دونوں آپس میں اپوزٹ کوالٹیز ہیں، ایک دوسرے کے متبادل ہیں، اور اسمات وہ والی حروف کی صفت ہے جس کو ادا کرتے وقت آپ کو جو ہے وہ تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، جس کا مخرج تھوڑا اسٹرانگ ہے۔ جن حروف کو ادا کرتے وقت ان کی آواز مخرج پر پورے جماؤ کے ساتھ بیٹھتی ہے، جس طرح آپ دیکھ بھی سکتی ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ آواز اپنے مخرج سے رک کر اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ مینس کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ اور بڑی جنٹلنس کے ساتھ ادا نہیں ہوتی، ان کو ادا کرتے وقت آپ کو تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ والے تمام حروف جو اطلاق میں نہیں آتے وہ اسمات میں آتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے اس میں کوئی ایسا ایگزامپل نہیں دی، لیکن جیسے ہی ہم اطلاق پر جائیں گے نا تو آپ کو ملے گا کہ اس میں جو مجموعہ ہے حروف کا وہ ہے فرّ من لبی، لبن، فر من لب بھی کہہ سکتے ہیں، فر من لبن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مجموعہ ہے حروف کا۔ تو اس کو ادا کرتے وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ والے حروف ہیں جو زبان کی نوک سے اور آپ کے لپس سے، آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایگزٹ پوائنٹ پہ جو ہمارا منہ ہے اس کی باہر والی جانب سے بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ادا کرتے وقت آپ کو خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ کس طرح سے کہ ان کو ادا کرتے وقت آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس حرف کو جو بھی آپ اس میں سے ادا کریں، آپ نے پورا اس مخرج کو پوری طرح سے ادا کرنا ہے۔ مینس کہ آپ کی جو organ آف اسپیچ ہے، چاہے وہ زبان ہے یا ہونٹ ہے، اگر تو ان کو راؤنڈ کرنا ہے تو پوری طرح سے راؤنڈ کرنا ہے، جو کہ ہم ضمہ میں کرتے ہیں۔ اگر فتحہ ہے تو پوری طرح سے آپ نے منہ کو کھولنا ہے، اور اگر کسرہ ہے تو پوری طرح سے آپ نے اس کو کسرہ کی آواز دینی ہے۔ ادروائز یہ ایسے حروف ہیں جو پھسل جانے والے ہیں، آسانی سے اور سہولت کے ساتھ ادا ہو جانے والے ہیں۔ اگر آپ اس کو پوری طرح سے اس کا حق ادا نہیں کریں گے نا تو یہ حروف ایسے ہیں کہ جو اس کا کوئی نہ کوئی حق ایز اے حرف رہ جائے گا۔ میں نے کچھ ایگزامپلس دی ہیں، فار ایگزامپل منہم باللہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اخفا شفویس پہ اپلائی ہوگا، منہم باللہ۔ تو اگر ہم میم کے اوپر میم کے اوپر اگر ہم غنہ نہیں کرتے نا، اگر ہم اخفا شفوی اپلائی نہیں کرتے تو موسٹ لائکلی جو میم ہے ہم اپنے ہونٹوں کو پوری طرح سے بند نہیں کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ منہم بلا، وداؤٹ غنہ، وداؤٹ ہولڈنگ میم، آپ ان دو حروف لفظوں کو اکٹھا پڑھ کے دیکھ لیں۔ منہم باللہ، آپ کو میم پڑھتے وقت ایک جو ہے نا ہونٹوں کو پوری توجہ کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو بند کرنا ہے۔ اگر آپ بند نہیں کریں گی تو وہ پھسل جائے گا، مینس کہ پوری طرح سے بند کیے بغیر ہی آپ با پہ چلی جائیں گی۔ تو پہلی بات ہے اخفا شفوی اپلائی ہوگا تو غنہ تو ہوگا ہی، لیکن وہ والے لفظ، وہ والے الفاظ جہاں پہ غنہ نہیں ہے، جیسے ہم فیہا ہے، ہم فیہا، آپ دیکھیں گے کہ میم بھی آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور اسی طرح فا بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ میم پر پوری طرح سے اپنے ہونٹوں کو بند نہیں کریں گی تو فا پہ چلی جائیں گی تو میم رہ جائے گا، کہیں نہ کہیں اس کی آواز
कम हो जाएगी, रह जाएगी। तो आपको पता है कि ये जो मीम है हमने पहले सिफ्त में पढ़ा, इसके ऊपर तवस्सुत की सिफ्त अप्लाई होती है। तो वो तवस्सुत क्या है कि आपने इसमें रिखावा और शिद्दत दोनों पाई जाती हैं, दोनों की सिफात पाई जाती हैं, तो वो तवस्सुत में आ जाएगा, मीन्स के मिडल मिडल में आ जाएगा, इन दोनों के दरमियानी हालत में आ जाएगा। तो आपको इसको कुछ देर अपने अपने होंठों को दबा के बंद करके रखना है, फिर आपने फा पे जाना है, ऐसे हुम फीहा। इतना नहीं दबाना कि वो गुना पे चला जाए, मीन्स कि उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना, लेकिन इतना कम भी नहीं करना कि वो छूट जाए, जैसे हुम फीहा। ये तब होता है जब हम रवानगी के साथ तिलावत कर रहे होते हैं ना आयात की, तो तेजी में पढ़ रहे होते हैं, तो फिर वहां पे ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप इसको कम टाइम दें और जल्दी अदा कर जाएं, और उसमें फिर ये रह जाता है। तो इसको इस वजह से इतलाक में जो है ना इन हरूफ को इकट्ठा किया गया। एक और जो जो लफ्ज मुझे लगा कि ये भी एक अच्छी एग्जांपल है, जैसे फा है अफवाजन, अफवा। अब ये देखें कि फा और वाव ये दोनों होंठों से अदा होने वाले हरूफ हैं। तो फा फर्रा मिन लुब्बिन में है, तो अफ आपको इस पे हम्स भी करना है, मीन्स के एयर फ्लो लेके आनी है। अगर वो सिफ्त अप्लाई नहीं करेंगी और पूरी तवज्जो के साथ फा को अदा नहीं किया जाएगा ना, तो ये फा और वाव में मर्ज हो जाएगा, कहीं ना कहीं आवाज गुम जाएगी फा की, अफवा सॉरी अफवा कर। सिस्टर आसिफा, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है हमारे साथ। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं दोबारा करती हूँ। ये कब से नहीं हो रही? शुरू से, जब से शुरू मैंने से ही स्टार्ट। नहीं है, लेकिन आप यहीं से कंटिन्यू कर लें, शुरू से ही नहीं है। ओके, आई डोंट नो, लेट मी सी। अब ठीक है? कैन यू सी जी दिस? जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, तो मैंने, आप मुझे बताइएगा अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो। अच्छा, मैंने इस माद से शुरू किया था, तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह आवाज मखरज पर रुक कर और जमाव के साथ अदा होती है। तो वो तमाम वाले हरूफ जो इज़लाक में नहीं आते वो इस्मात में आते हैं, तो वो चूंकि मेजोरिटी में ज्यादा हैं, तो मैंने उसकी कोई ऐसा एग्जांपल नहीं दी है। तो इस्मात और इज़लाक कोई ऐसी सिफात नहीं है जो रेसिटेशन के ऊपर अफेक्ट करें या मतलब चेंज कर दें। इस वजह से कुछ स्कॉलर्स ने इनको कहा, इनको इंक्लूड किया सिफात में, और कुछ ऐसे अदर स्कॉलर्स हैं जिनके नज़दीक ये वन ऑफ दी सिफात जो है ना वो नहीं है, तो लिहाजा वो इनको काउंट नहीं करते। लेकिन इनकी अपनी जगह पे एक अहमियत लाजमी है। वो किस तरह से है वो हम इस तरह देखते हैं कि इदलाक में जब आप जाए ना, जब आप इदलाक पे जाएंगी ना, तो यहाँ फर्रा मिन लुबिन के हरूफ हैं जो जो एक जगह जमा कर दिए गए हैं इस फ्रेज में, इस सेंटेंस में। तो इनमें वो वाले हरूफ हैं जो जुबान की नोक से या होंठों से ज्यादातर अदा होते हैं, और इनको अगर हम पूरी तवज्जो के साथ अगर अदा नहीं करते ना, तो ये फिर फिसल जाते हैं, मीन्स के ये कहीं ना कहीं रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको वर्ड्स में दी है कि जैसे मिन हुम बिल्ला है, तो ये मैं बता रही थी कि यहाँ पे इख्फा शफवी अप्लाई होता है जरूर वैसे तो, लेकिन अगर हम इख्फा शफवी के बगैर इसको नोट करें तो आप देखेंगे मिन हुम बिल्ला, अगर हम मीम पर पूरी तरीके से तवज्जो ना दिए बगैर मीम पर अपने होंठों को पूरी तरह बंद नहीं करते ना, तो ज्यादा तर चांसेस हैं कि हम बा पे चले जाएंगे और मीम को पूरी तरह से अदा नहीं करेंगे। तो मीम और बा ये दोनों फर्रा मिन लुबिन में आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से आपको इनको इन हरूफ को अदा करते वक्त इस मखरज को पूरी तरीके से अप्लाई करना है। मीन्स के अपने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जिसमें जुबान और होंठ आ जाते हैं ना, इनको पूरी तरह से या राउंड करना है या खोलना है या इसको कसरा देना है। फतहा कसरा दम्मा की तमाम हालतों में इन हरकतों पर इन हरूफ को अदा करते वक्त आपने ख्याल खास करना है। इसी तरह हुम फीहा है, अब इस पे तो कोई गुना नहीं है, कोई इख्फा नहीं है, तो अगर हम मीम पर पूरी तरह से अपने होंठों को दबाकर बंद नहीं करते ना, तो वो फा पे ज्यादातर चला जाता है। जैसे हुम फी तो क्या है कि मैंने अपने होंठों को ऊपर वाले और नीचे वाले होंठों को आपस में अगर नहीं मिलाया तो फी पे चला जाएगा। हुम फीहा ये सहूलत के साथ अदा होने वाले हैं, तो मैंने खुद से कोशिश करनी है कि ये हरूफ मुझसे फिसल ना जाए। ठीक है। इसी तरह अफवाजन, अफवाजन तो फा मैं बता रही थी कि ये हम्स
کا بھی حرف ہے. اس پہ ہمس اس طرح سے ہے کہ اس میں ہوا یا سانس بحال رہتی ہے. اور سکون کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی صفت سکون کے ساتھ زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے. تو ہم نے جو ہے نا فار ایگزامپل یہ فا ہے تو سکون کے ساتھ اگر ہم ادا کریں گے تو پہلے اس کی ہمس کی کوالٹی اپلائی کریں گے افواجن افواجن، پھر ہم واو پہ جائیں گے. اگر ہمس نہیں اپلائی کریں گے تو یا تو وہ حرف جو ہے وہ باؤنس ہو جائے گا، افوا افوا ہو جائے گا. اور جس طرح یہ کہا گیا کہ سہولت کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا حق جو ہے نا وہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اطلاق اور اسمات آپس میں اپوزٹ ہیں. اطلاق والے وہ والے حروف ہیں وہ جو آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، تو ہم نے ان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، مینس ان کو بآسانی نہیں پڑھنا، ان کے اوپر توجہ دینی ہے تاکہ وہ کھو نہ جائے، کہیں وہ رہ نہ جائے. اور جو اسمات کے جو حروف ہیں وہ جماؤں کے ساتھ اپنے مخرج پر ٹھہر کر ادا ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو ایسج کوئی جو ہے نا وہ سہولت یا وہ اتنا خیال نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ مخرج پر رہیں گے. اس کو ادا کرتے وقت اس کے مخرج پر جو ہے آپ کی توجہ ہوگی تو وہ جو ہے نا وہ پھسلیں گے نہیں. ٹھیک ہے، اتنی آسانی سے اور جلدی سے ادا نہیں ہوں گے. تو یہ دونوں میں ایک کمپیریزن تھا. اگر ہم آگے بڑھیں تو اس کے ساتھ ہی ہماری صفات اللازمہ متبادہ ختم ہوتی ہیں اور صفات اللازمہ غیر متبادہ شروع ہو جاتی ہیں. صفات اللازمہ غیر متبادہ وہ والی صفات ہیں جن کی کوئی اپوزٹ کوئی اور صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر صفت کی اپوزٹ کوئی دوسری صفت آپ کو نہیں ملے گی. یہ خود بذات ان حروف کی ایز این انڈیویجول اپنی ایک خاص کریکٹرسٹکس ہیں، فیچرز ہیں، آپ ان کو صفات کہہ لیں، جو ان میں لازمی پائی جاتی ہیں. اگر وہ یہ صفت نہیں ادا ہوگی نا ان میں تو پھر وہ حروف جو ہے وہ ناقص رہے گا. ٹھیک ہے، اس میں وہ بیوٹی نہیں رہے گی. تو ہم سب سے پہلے جو صفت غیر متبادہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے صفیر. صفیر کا مطلب ہے کہ جس طرح وسلنگ ساؤنڈ ہوتی ہے، سیٹی جیسی آواز پیدا کرنا، وہ کس طرح ہوگی؟ سین، صاد اور زائی یا زا دونوں طرح سے یہ پڑھا جاتا ہے، زائی بھی اور زا بھی. ان تینوں حروف پر صفیر کی کوالٹی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، سین اور صاد میں ذرا اسٹرانگ پائی جاتی ہے کیونکہ صاد ایک ہیوی لیٹر ہے، اس کو ہم مفخم کر کے پڑھتے ہیں. لیکن سین میں چونکہ یہ لائٹ لیٹر ہے تو وہ اتنی اسٹرانگ جو ہے وہ آواز نہیں آتی. لیکن اس میں جو وسلنگ ساؤنڈ ہے وہ نمایاں ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتی ہے. جو زا ہے یا زائی ہے اس میں بزنگ ساؤنڈ ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سین اور صاد اور زائی کو ہم صفیر کے ساتھ کیسے ادا کریں گے. تو پہلے آپ نے اس کے مخرج پر زبان کو لے کے جانا ہے، پھر اپنے اوپر اور نیچے والے دانتوں کو قریب سے قریب تر کرنا ہے. اپنے دانتوں کو بالکل ملا نہیں دینا، اوپر کے اور نیچے والے دانتوں کو بالکل ساتھ ملا نہیں دینا، بلکہ قریب سے قریب تر کرنا ہے. اور ایسی سیٹی جیسی آواز پیدا کرنی ہے. میں اکثر اگزامپل دیتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، جس طرح پریشر کوکر کی ایک آواز آتی ہے نا، جب بھی اس کا ویٹ پریشر میں موو کرتا ہے اور یہ آواز آتی ہے، تو یہ بھی بالکل ویسی ہی ہے. سین یا گیس لیکیج کی آواز بھی تقریباً اسی طرح سے ہی آتی ہے. تو آپ یہ وسل کر کے آپ دیکھ لیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کا مخرج آپ نے اپنی زبان کو کہاں ٹھہرایا ہوا ہے، آپ کا مخرج کہاں پر آ کے رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سین پہلے صفیر کی کوالٹی اپلائی ہوگی، پہلے آپ وسل لے کے آئیں گی، اس کے بعد ساؤنڈ آئے گی سین کی، سین سین سین. ٹھیک ہے، اور صاد بھی اسی انداز سے شروع ہوگا، مطلب اس کا ابتدائی حصہ بھی صفیر کے ساتھ شروع ہوگا. اس کے بعد آپ زبان کو اٹھا لیتے ہو، پیچھے سے سینٹر سے کرو کر لیتے ہو، جس سے اس میں ہیوینس آ جاتی ہے. صاد صاد. ٹھیک ہے، سین صاد صاد. ٹھیک ہے، سٹارٹنگ سین اور صاد کا بالکل ایک جیسا ہی ہے، اس میں صفیر کی کوالٹی پائی جاتی ہے.
تو سٹارٹ آپ نے ایک جیسا لینا ہے، اس کے بعد صاد میں زبان پیچھے سے اٹھا لینی ہے، سینٹر سے کرو کر لینی ہے اور آ کی آواز اس میں لے آنی ہے۔ جبکہ سین ہے تو سا سا سا، آپ دیکھیں ابھی بھی میں اپنے ان کو ڈسٹینس کر رہی ہوں، اپنے اوپر والے دانتوں کو اور نیچے والوں کو، لیکن سیٹی کی آواز کے بعد سا 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 فا فا فا، یہ دونوں میں فرق ہے لیکن سٹارٹنگ ایک جیسا ہے۔ اور زا کے لیے بزنگ ساؤنڈ ہے، بزنگ ساؤنڈ کی ایگزامپل بیسٹ جو ہے وہ میں دیتی ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں زیبرا زیبرا یا زپ زپ، تو ان دونوں ورڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بزنگ ساؤنڈ پائی جاتی ہے، تو وہ سیم بزنگ ساؤنڈ زا کی بھی ہے، ازواجن 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 يصلونها يصلونها المستقيمة المستقيمة، اگر ہم یہ وصل نہیں لے کے آئیں گے نا تو کیا ہوگا، يصلونها يصلونها المستقيمة تو وہ آپ سمجھے کہ کٹ ڈاؤن کر دیا میں نے، ان حروف کو شارٹ کر دیا، اور جو ہے وہ ہمس جو ان میں پایا جائے گا، فحثہ شخص سکت، تو صاد اور سین یہ ہمس کی بھی جو ہے نا صفات اس میں آتی ہیں، تو ہم نے ان میں تھوڑی سانس لے کے آنی ہے، جو ہے نا ایئر فلو لے کے آنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ سفیر کی کوالٹی جو سیٹی جیسی آواز ہے وہ لے کے آنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سٹیپس کو فالو کریں، پہلے آپ اس کے اوپر سفیر کی صفت کو اپلائی کریں اور اس کے بعد اس میں ساؤنڈ لے کے آئیں اس ان حروف کو ادا کرتے وقت، تو انشاءاللہ یہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ یہ تھا سفیر۔ اس کے بعد آنے والی جو صفت ہے وہ ہے قلقلہ۔ قلقلہ جب ہم ادا کرتے ہیں نا تو یہ ان حروف پر ادا ہوتا ہے جن کے اوپر سکون آئے، ٹھیک ہے، صرف سکون کی حالت میں قلقلہ کی صفت اپلائی ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہوتی۔ تو قاف طا با جیم دال، یہ 5 ایسے حروف ہیں جو اگر سکون کے ساتھ آئیں تو پھر ہم ان کو باؤنس کرتے ہیں، ان میں ایک جنبش پیدا کرتے ہیں، ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، مینس کہ جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں نا، آپ نے ان آرگنز آف سپیچ کو جس میں جو ان کا مخرج ہے، اپنے آرگن آف سپیچ کو زیادہ ہلائے بغیر ان کو آپس میں ٹکرانا ہے۔ کیسے؟ اقو اقو اقو، اب دیکھیں گے کہ میری جو زبان ہے نا پیچھے سے، کیونکہ قاف کا مخرج زبان کی بیک سائڈ سے ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ہی ہے، میرا تمام منہ کا جو اندرونی حصہ ہے نا وہ کہیں آگے پیچھے کہیں موو نہیں ہو رہا، سوائے اس مخرج کے جو اوپر نیچے آ رہا ہے، اقو اقو اقو، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ قاف میں فتحہ بھی نہیں لے کے آنا، ایسے بھی نہیں کرنا کہ آپ نے منہ کو کھول دیا تو اس پہ فتحہ آ جائے، آپ کو پتہ ہے فتحہ ادا کرنے کے لیے آپ کو منہ کو کھولنا پڑتا ہے، فتحہ کا مطلب ہی ہے کہ کھولا جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے منہ کو کھولنا نہیں بہت زیادہ، تو اس کو کسرہ بھی نہیں کرنا، اس کے اوپر دمہ بھی نہیں لے کے آنا، اس کے اوپر حمزہ کی اینڈنگ بھی نہیں کرنی، جیسے اق اق اق، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کٹ آف کر دیتے ہیں ساؤنڈ کو، جس سے کیا آتا ہے کہ حمزہ کی ساؤنڈ اینڈ پہ آ جاتی ہے، خلق خلق، وہ اس طرح کرتے ہیں خلق خلق، تو کیا ہوا، اینڈنگ حمزہ کے ساتھ آ گئی، تو اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اس کے اوپر قلقلہ کو ادا کرتے وقت اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو اس کے بعد آنے والا کوئی بھی حرف ہے یا لفظ ہے اس میں زیادہ ڈسٹنس بھی نہیں لے کے آنا، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے۔ پہلے تو آپ ان کے 2 لیولز دیکھ لیں کہ قلقلہ کے 2 لیولز ہیں، کچھ لوگ اس کو 3 لیولز میں بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں آپ کو 2 کا ہی بتا رہی ہوں کہ جب قلقلہ حرف پر وقف کریں تو قلقلہ کبرا ہوگا، جب قلقلہ حرف پر وقف کریں تو قلقلہ کبرا ہوگا، جب قلقلہ حرف لفظ کے درمیان میں آئے تو قلقلہ صغرا ہوگا۔ وہ کس طرح؟ الفلق، اب اس کے اوپر میں وقف کر رہی ہوں، ویسے تو یہ اینڈ آف دی آیا ہے، لیکن اگر کہیں بیچ میں بھی آیت کے بیچ میں بھی کوئی ایسا حرف آ جائے، ایسا لفظ آ جائے جس کا آخری حرف
कलकला का हो और उसके ऊपर मैंने चूज किया कि यहाँ मैंने स्टॉप करना है, तो वो मेरा स्टॉपिंग पॉइंट हो जाएगा कि मैंने कलकला हर्फ पर वक्फ किया है, तो वो कलकला कुबरा हो जाएगा। अल फलक, अब देखिए नजिद लहू, अब मैं अगर चूज करूँ नजिद पर ही मैंने स्टॉप करना है, तो वो फिर मेरा कलकला कुबरा हो जाएगा। नजिद, नजिद अल फलक, नजिद। और नीचे वाली एग्जांपल में खलक़ना, अब ये लफ्ज के दरमियान में कलकला का हर्फ है खलक़ना। अब ये दोनों हालतों में किस तरह से फर्क है, वो कुबरा क्यों है और ये सूरा क्यों है। असल में जो कुबरा है उससे मुराद ये है कि कलकला की जो आवाज है ना, ये ज्यादा नुमाया क्लैरिटी के साथ, और जो है ना थोड़ी देर तक आपकी आपकी कानों में रहती है। अल फलक, ठीक है, इसकी जो एक जुम्बिश है, या आप समझने की इसकी साउंड कुछ टाइम तक आपके कानों में रहती है कि अल फलक, आपने कुछ कलकला का सुना, किसी हर्फ को बाउंस किया, ठीक है, कुछ टाइम तक इसकी आवाज आपको सुनाई देती रहती है, आपके सिस्टम में, आपके आपके दिमाग में, आपके कानों को वो आवाज वहीं पे रहती है। अल फलक, दैट्स इट, दैट वाज द लास्ट पॉइंट। लेकिन अगर वो दरमियान में आ जाती है जैसे खलक और ना, तो वो ना ने अब उसको डोमिनेट कर दिया, और कॉफ जिसको मैंने बाउंस किया था वो दरमियान में रह गया, तो उसके बाद वाली साउंड जो है ना वो पहले वाली साउंड को डोमिनेट कर जाती है। तो इससे क्या होता है, वो सुगरा, कलकला सुगरा कहेंगे अब, कि उसकी उतनी नुमाया नहीं रही, क्योंकि उसके बाद वाले हरूफ ने या लफ्जों ने आके उसको ढांप लिया, या उसको कम कर दिया, या उसकी आवाज की जो वो क्या कहते हैं, गूंज जो है ना, वो एनवायरमेंट में इतनी ज्यादा गूंज नहीं रही होती, ठीक है, बार बार सुनाई नहीं दे रही होती। तो ये था कलकला कुबरा और कलकला सुगरा। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आपने इसके ऊपर एक तो हमजा नहीं लेके आना, इस तरह से अदा नहीं करना कि उसकी एंडिंग ऐसे कर दें कि उसमें आप अपनी आवाज को बिल्कुल बंद कर दें, जैसे खलक न, नो, दरमियान में जो है ना इसको फौरन से अदा करना है, खलक न, उसी रवानगी के साथ, खलक न, जिस तरह आप तिलावत करती आ रही हैं। लेकिन अगर बीच में आपने रोक दिया न, खलक न, तो वो एक तो आपने गैप दे दिया कॉफ और नून के दरमियान में, दूसरा आपने हमजा कहीं ना कहीं उसमें ऐड कर दिया। बहुत सारे ऐसे अल्फाज आते हैं कुरान में जहाँ पे कलकलाप करते हो, लेकिन उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि अगर हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते ना, तो उसमें हमजा या हा दोनों जो है ना वो ऐड हो जाते हैं, साउंड्स ऐड हो जाती हैं, हम रियलाइज भी नहीं करते कि हम ये साउंड्स उसमें जो है ना वो ऐड कर रहे हैं। तो क्योंकि कॉफ कॉफ बा जीम दाल ये 5 हरूफ हैं, तो इस पे आपने खास अपनी जो है वो नजर रखनी है कि हमने इसको अदा किस तरह करना है। इंशाल्लाह आगे चल के मैं सुनूंगी, अगर आपने मुझे सुनाना चाहा कुछ तो फिर मैं आपको मजीद इसको क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। अलीन, अलीन, लीन का मतलब क्या है, आसानी के साथ, नरमी के साथ, बड़ी रेस्टलेस जो है ना आपको बहुत क्या कहते हैं जेंटलनेस के साथ इसको अदा करना होता है। इस ये 2 हरूफ हैं, वाव साकिना उससे पहले अगर फतहा आ जाए, या साकिना उससे पहले फतहा आ जाए, ठीक है। तो इनको अदा करते वक्त आपको ज्यादा कुछ खास करना नहीं पड़ता, कोई इतनी एफर्ट नहीं लगती, बड़ी आसानी से ये अदा हो जाते हैं, इसी वजह से इनको लीन का नाम दिया गया है। जैसे बाऊ, बई, आओ, ताऊ, जाऊ, हाउ, आई, बई, तई, जई, हई, खई, ठीक है, आराम से ये अदा हो जाते हैं, तो इनको हम हरूफुल लीन कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका भी ऑपोजिट कोई नहीं है। ये जो है ना, हाँ मैं ये एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करती जाऊं कि ये मद नहीं है, ठीक है, इनको हम मद जैसा नहीं पढ़ रहे, लेकिन इनको अदा करते वक्त तकरीबन उतना ही टाइम लग जाता है जैसे हम मद असली को देते हैं, ठीक है, जैसे बा, बी, बू, बाऊ, बई, बाऊ, बई, टाइमिंग तकरीबन सिमिलर हो जाती है, लेकिन ये मदूद में नहीं आता, ये मद नहीं है, ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल करना है। ये मद में कन्वर्ट कब होगा, जब हम इसके बाद वाले किसी हर्फ पर वक्फ करेंगे, और वो जो वक्फ है ना वो टेम्पररी सुकून वाला आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं मदलीन, ठीक है, मद आरिद लिल सुकून।
मद्दुल्लीन, सॉरी नॉट मद आइल सुकून, मद्दुल्लीन, मद्दुल्लीन हम कहेंगे, let me just go back to the point, मद्दुल्लीन कहेंगे। तो उसमें वो इधर 2, 4 और 6 हरकत या काउंट्स हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो वो फिर मद में आ जाता है। लेकिन अभी इस हालत में ये मद नहीं है, ठीक है। इसके बाद आने वाला कोई भी हर्फ सुकून की शक्ल अगर इख्तियार करेगा और उसके ऊपर हम वक्फ कर रहे हैं ना, जैसे सूरत कुरैश में आप चली जाएं, सूरत कुरैश में क्या है, लीइलाफी कुरैश, कुरैश, तो हम शीन के ऊपर वक्फ कर रहे हैं। शीन के ऊपर कोई हरका भी हो सकता है, लेकिन हम उसको ऊपर सुकून लेके आ रहे हैं। तो उससे पहले क्या है, रई, रा फतहा, या साकिना, रई कुरैश। अब उसको हम 2 काउंट्स कर सकते हैं, 4 काउंट्स कर सकते हैं, या 6 काउंट तक उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो वो मद में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इस हालत में ये मद नहीं है। इनहिराफ, इनहिराफ का क्या मतलब है, इसका मतलब है डिविएशन, अपनी जगह से इनहिराफ कर जाना, हट जाना, दूसरी जगह इख्तियार कर लेना। जो यूजुअल पैसेज था उसको छोड़ के आप साइड से कहीं से निकल जाएं, तो उसको कहेंगे इनहिराफ, ठीक है। तो तजवीद में ये कौन सी सिफ्त है, ये वो वाली सिफ्त है जहाँ पर जो हमारा ओपनिंग पैसेज ना जुबान का, वहां से जो सामने का मुंह है, होंठ है, यहाँ से हमारी आवाज एज ए यूजुअल रूटीन बाहर आती है। हम जब बोलते हैं तो नॉर्मल रूटीन क्या है कि जुबान नीचे होगी और जो भी आवाज होगी वो आसानी से बाहर आ जाएगी। लेकिन जो 2 हरूफ है ना, लाम और रॉ, ये ऐसे हैं कि जो जो हमारी इजी फ्लो ऑफ साउंड है ना, टू कम आउट, ये इसको ब्लॉक करते हैं। तो जुबान क्या करती है, बजाय इसके कि वो सामने से बाहर आवाज आ सके, अब वो साइड की टर्न्स लेगी। तो पहले हम लाम का देखते हैं, बल्कि हम रॉ का देखते हैं। ऊपर वाली जो अगर आप पिक्चर देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, तो इसमें रॉ की एग्जांपल है। तो चूंकि रॉ का मखरज ऐसा है कि आपकी जो जुबान की नोक है ना, वो आपके गम रिज के ऊपर जाके टच करेगी। तो गम रिज का हमने लास्ट प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि गम रिज किसको कहते हैं। तो जो एंड ऑफ द गम रिज है, वहां पर जब आपकी जुबान की नोक टकराएगी, या वहां इसका मखरज है रॉ का, तो जैसे अर अर उससे ज्यादा क्लियर होता है। तो जो जो आवाज है ना, अब वो सामने से तो आ नहीं सकती, क्योंकि यूजुअल पैसेज क्या था आवाज का, सामने से बाहर निकलना। अब वो सामने से नहीं आ सकती, तो क्या है, अब उसको इनहराफ करना पड़ेगा। तो इनहराफ रॉ के लिए जो जुबान के दरमियान जो बिल्कुल टाइनी सा गैप रह जाता है ना, क्योंकि ये वो वाली जगह है जिसमें आर्च आ जाता है, तो जुबान उसको पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगी। अगर आप सही जगह पे रॉ को प्रोनाउंस करेंगी ना, तो आपकी जुबान अगर अपने मखरज पर है, तो आप देखेंगे कि सेंटर में एक एक जो है ना, वो ट्रायंगल शेप की एक गैप सी रह जाएगी। तो रॉ की आवाज वहीं से पैदा होती है, और क्या होता है कि वहीं से आवाज चूंकि जोर के साथ बाहर की जानिब निकलती है, निकलने की कोशिश करती है। ये देखिए एरोज भी बता रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो ग्रीन कलर में कोडेड है, ये तो हमारे मखरज के साथ जो है ना चिपका हुआ है। ये वाला हिस्सा हमारे ये गम रिज के साथ अटैच है। लेकिन जो जो बीच वाला है ना, जो सेंटर का हिस्सा है, यहाँ से आवाज बीच में से होके निकलती है। और चूंकि पीछे से इतना प्रेशर, आप देखिए इतने सारे एरोज हैं, ये आवाज का प्रेशर है। तो यहाँ से इतने सारा प्रेशर आवाज का इकट्ठा आ रहा है, तो फिर इसको अब डाइवर्जन रूट लेना पड़ रहा है, यहाँ से सेंटर से निकलना पड़ रहा है, बजाय इसके कि वो सीधा सीधा बाहर को आवाज आती है, बीच में से आना पड़ रहा है। तो इस प्रेशर से क्या होगा कि ये जो साइडें है ना हमारी जुबान की अतराफ, ये फिर इसको कहते हैं वाइब्रेट करना, या इसमें एक तकरीर सी आ जाती है जो कि नेचुरल है रॉ को प्रोनाउंस करते वक्त, क्योंकि ये प्रेशर है आवाज का, और ये हमारी जुबान चिपकी हुई है अपने गमरिज के साथ। तो क्या होगा, अर 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 अर, वो आपस में एक दो बार जो है ना वाइब्रेट करेगी आपकी जुबान। लेकिन ये रेपिटेटिव वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, अर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अर कहेंगे ना, बार बार तकरीर करेंगे इसमें, तो वो इट मीन्स कि आपने मखरज पे अपनी जुबान को नहीं ठहराया, एंड ऑफ द गम रिज पे आपकी जुबान ठहरनी चाहिए।
फिर जो भी बीच में नेचुरल वाइब्रेशन हो, दैट इज वेरी नॉर्मल और नेचुरल, उसको वो गलती में नहीं आएगा। वो नेचुरल तकरीर जो रॉ की अगर आप देखेंगे ना आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इसमें नेचुरल एक तकरीर पाई जाती है, वो यही वाइब्रेशन है कि आवाज को बाहर निकलना है बहरहाल, तो वो फिर क्या होगा कि ये दोनों वाइब्रेट करेंगे एक आध बार, लेकिन उसके बाद ठहर जाएंगे। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। अर, देखिए मैं आवाज कंटिन्यूस प्रोड्यूस कर रही हूँ, प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन अर एक दो बार वो वाइब्रेट किया है, लेकिन जुबान फिर ठहर गई है। अर, ठीक है, अर, क्योंकि मैं एंड ऑफ द गम ब्रिज पे अपनी जुबान को ठहरा रही हूँ। ये एरोज भी आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ से आवाज निकल रही है सीधी सीधी बाहर की जानिब, और यहाँ पर आके अब उसको पैसेज नहीं मिल रहा, तो क्या है, आप जुबान जो सॉरी ये सीधा सीधा वो बाहर नहीं आ पा रही, तो वो फिर उसको बीच में से आवाज को निकलना पड़ा, या सेंटर से, यहीं से वो स्नीक आउट होती है आवाज रॉ की। नीचे लाम है, तो लाम भी जिस तरह इनहराफ का मैंने बताया कि जो यूजुअल पैसेज ऑफ साउंड है जिसको बाहर निकलना है, अब उसको बाहर निकलने का रूट नहीं मिल रहा, तो क्या है, वो डाइवर्जन रूट जो है ना लाम की आवाज ले रही है। तो क्या है, यहाँ पे ज्यादा क्लियर है। अब देखिए सामने से तो आपने लाम को टच किया, अल अल कहेंगी ना, तो ये जो आपकी जुबान का सामने वाला हिस्सा है, ये जो स्टार्टिंग ऑफ गम ब्रिज है वहां पे आके चिपक गया, और ये साइडें आपकी बिल्कुल खाली रह गई, तो फिर आवाज यहाँ से आने की बजाय यहाँ से निकल रही है। ठीक है, यहाँ से निकल रही है, तो इसको कहेंगे इनहिराफ। ये वाली एरो जो जुबान के ऊपर है, ये भी आपको क्लियर कर रहा होगा कि किस तरह से जुबान साइडों से जो है वो आवाज को पैदा कर रहा है, ये बाहर से निकल रही है। ठीक है, अल अल, अगर साइडों से भी ना निकले और सामने से भी बंद हो जाए, तो वो तो फिर शिद्दा की क्वालिटी आ जाएगी ना उसमें, शिद्दा। अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि इसमें 50% शिद्दा है और 50% रिखावा है, 100% शिद्दा नहीं है। शिद्दा आपको पता है ना, वो वाले हरूफ है जो बिल्कुल आवाज को बंद कर देते हैं, प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं, फिर आपको या तो उनको बाउंस करना होता है या उसके ऊपर हम्स करना होता है। हम काफ और ता पे करते हैं, बाकी तमाम जो शिद्दा के लेटर्स हैं उनके जो कॉफ कॉफ बा जीम दाल है ना, वो शिद्दा के लेटर्स भी हैं और कलकला के भी, तो फिर हम उनके ऊपर कलकला करते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी हम मखरज तो क्लोज कर ही रहे हैं ना, जब मखरज के ऊपर जुबान आके ठहरी है और सामने आवाज सीधी सीधी भी नहीं बाहर को आ रही, तो क्या होता है, एक शिद्दत जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, लेकिन चूंकि आवाज डाइवर्ट हो रही है, दूसरी जगह से निकल पा रही है, तो फिर हम कहेंगे कि ये 50% शिद्दा है और 50% रिखावा है, क्योंकि इसको बाहर निकलने का एक रास्ता मिल रहा है। यूजुअल पैसेज नहीं है, लेकिन साइडों से कहीं ना कहीं से ये आवाज निकल पा रही है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें रिखावा भी आ जाता है और शिद्दा भी आ जाता है। चले हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको नेक्स्ट सिफ्त बताती हूँ, तफशी। तफशी से क्या मुराद है, तफशी से मुराद है कि आवाज जो जो हर्फ शीन है उसकी आवाज बिल्कुल मुंह में श करके वो बिल्कुल फैल जाती है। आवाज जो है ना आपके पूरे मुंह में, जहां से इसका मखरज है वहां पैदा होती है, और बिल्कुल साइडों पे आपके आप देखेंगे कि गम्स पे, आपकी गालों में, आपके मुंह में, ऊपर नीचे पूरी तरीके से ये मुंह में आवाज फैल जाती है। अश अश अश, इसको तफशी कहेंगे, आवाज का मुंह में फैलना। ठीक है, तो आप देखें ये जो एग्जाम्पल के हरूफ मैंने आपको बताए, शैअन, अशहदु, शैअन, अशहदु, तो थोड़ी देर आपने पैदा करनी है। ठीक है, ये आवाज अश अश, तफशी की सिर्फ आप थोड़ी देर अप्लाई करें, और उसके बाद आप उस पूरे जो है ना वो लफ्ज को अदा करें, तो इंशाल्लाह ये आपका शीन क्लियर हो जाएगा। और इसमें एक ब्यूटी भी आती है, जब आप कोई बड़ा लफ्ज पढ़ते हैं ना, जैसे जैसे तशकुरूना, तशकुरूना, तो वहां पे ये तफशी की जो सिफ्त है ना वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ महसूस होती है। वो किस तरह, अगर हम तशकुरूना जल्दी पढ़ लेते हैं ना, तो वो हर्फ जो है वो बाउंस हो जाएगा या कहीं ना कहीं आधा रह जाएगा। आप खुद महसूस होगा कि ये उसमें कुछ कमी है, कुछ जो है ना उस नामुकम्मल है ये, तो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा शीन को। तशकुरूना, एक तो इसमें हम्स है,
फहस्सहु शख्सुन सकत, शीन उसमें उस आप देखेंगे उस मजमूए का एक हर्फ है। हम सबको देना है, कुछ देर तक के लिए उसको बोलना है। दूसरा इसमें रखावा आ जाता है कि आवाज कंटिन्यू हो रही है, ब्लॉक नहीं हो रही। तो तफशी की सिफ्त है कि शीन का जो है ना वो आवाज मुंह में फैलनी चाहिए। तो मैं बार बार आपको पहले वाली सिफात भी साथ साथ आपको रिमाइंड करा रही हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए कि किस तरह एक हर्फ के ऊपर एक से ज्यादा सिफात अप्लाई होती हैं। तो आपकी थोड़ी सी जो है ना वो एक रिवीजन भी हो जाएगी और आपको थोड़ी और क्लैरिटी के साथ समझ भी आएगी। तो इंशाल्लाह ये एक ही हर्फ है तो जो तफशी में आता है। तो देखते हैं इससे नेक्स्ट कौन सा हर्फ आता है, कौन सी सिफ्त आती है। ये है इस्तक़ाला। इस्तक़ाला ये जो है तमाम हरूफ में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हर्फ है, जिसको सीखने के लिए माशाल्लाह स्टूडेंट्स बहुत एफर्ट करती हैं। वैसे ही अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। अगर आपको इसका मखरज समझ आ गया, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि किस तरह से ये अदा होता है, तो ये आप यकीन जाने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो पहले तो आप ये देखें कि जो बौद है इसका जो मखरज है वो आपकी अक्सल हफ़त लिसान है। अब मैं अरबी का ये टर्म यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको उर्दू में बता दूं कि जुबान का पीछे वाला हिस्सा जो या इधर राइट और लेफ्ट, दायां या बायां दोनों या कोई भी एक, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों राइट और लेफ्ट दोनों अतराफ हो सकते हैं या एक। आपने जुबान का ये वाला हिस्सा इसके ऊपर प्रेशर, ये जो ग्रीन एरिया ना इसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना है। लेकिन जुबान का तमाम साइड वाला हिस्सा ये जो जितनी भी है इसको हाफा कहते हैं, हाफत लिसान, ठीक है। ये तरफ लिसान नहीं है, ये अतराफ नहीं है जुबान के। ये समझने की इसकी ये एजिज हैं, ठीक है। जुबान की जो एजिज है ना, ये कोने, ये तमाम ऊपर वाले जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनके साथ जाके लगेंगे। ये जुबान समझ लें, ये जो ग्रीन और येलो वाला पार्ट है ना, ये सारा का सारा ये आपकी जुबान है एक्चुअली, ठीक है। आप इस तरह इसको सोचें कि ये आपकी जुबान है जो ये यहाँ पे दिखाई गई है। अब इसको बिल्कुल यहाँ फिट कर दें तो ये आपकी जुबान आ गई। तो क्या है, ये पीछे वाले मसूड़ों के साथ दोनों तरफ आप देखेंगे कि ये ग्रीन पार्ट ऑफ जुबान है, ये वाली ग्रीन पार्ट ऑफ द टंग है, ये यहाँ है। और जो येलो है वो ये वाली है, ये यहाँ चिपक गई, ठीक है, ये यहाँ चिपक गई। अब जो येलो पार्ट है उसके ऊपर आपने प्रेशर नहीं डालना, वरना वो दाल पे चला जाएगा। उसके ऊपर आपने प्रेशर नहीं डालना, आपने प्रेशर बिल्डअप करना है पीछे वाले हिस्से पे। अब 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 आवाज यहां से निकलेगी यहाँ पे, और ये वो वाला हिस्सा है जो आपका यहाँ पे चिपका हुआ है, ठीक है। ये मुंह की सेंटर की सिचुएशन है, तो आपने इससे बिल्कुल ये नहीं समझना कि जुबान तो बिल्कुल चिपकी भी नहीं है, साइडों पे है। आप इसको देखें, ये तो पैलेट हो गया ना, ये ऊपर वाला पैलेट है, इसके साथ तो यहाँ पे एक गैप रहेगा। जुबान साइडों से आपके मसूड़ों के साथ चिपकी भी होगी यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी जुबान चिपकी भी है, और ये अब आपने प्रेशर बिल्डअप करना शुरू किया, लेकिन आप बाहर नहीं जाने दे रहे। आप देखिए कितने सारे एरोज हैं, ये प्रेशर पॉइंट्स है, ये सब आपने प्रेशर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, और आप जुबान से बाहर नहीं जाने दे रही, आवाज को भी सांस को भी आप बाहर नहीं जाने दे रही। आपने आगे से इसको जेंटली बंद किया हुआ है, ठीक है। आप इसको बाहर नहीं, लेकिन जैसे जैसे पीछे से प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो ये जुबान पे लोड सा पड़ता रहेगा। जुबान पे लोड पड़ेगा तो यहाँ पे प्रेशर आएगा। फिर अब आप शिफ्ट कर सकती है ना अपनी सांस को, या इधर लेफ्ट और राइट कहीं पे भी आप शिफ्ट करें। तो आपने शिफ्ट कहाँ करना है, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे रखना है। और इसकी एग्जांपल मैं फ्रॉग की देती हूँ। जो मेंढक है वो आप देखें ना, कभी वो बहुत बड़े साइज के जो मेंढक होते हैं अक्सर वो अपनी चीन को किस तरह नीचे की तरफ लेके जाते हैं और ऐसी आवाज पैदा करते हैं, "उम, उम, उम"। ये उसी प्रेशर के साथ आपकी जो चिन है ना नीचे की तरफ, ये जो चिन के नीचे वाला की स्किन है, ये आप देखेंगे कि नीचे की तरफ लोड के साथ जा रही होगी, ठीक है। इसमें भारीपन होगा, वो नीचे की तरफ जाएगी, तो वही दौद की साउंड को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब 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 बहुत बहुत जब आप इसको
प्रेशर में लेके आते हो ना अपनी जुबान को, तो इस प्रेशर से क्या होता है, जुबान थोड़ा सा फिसल के ना आपके आगे वाले दांतों के मसूड़ों के साथ जाके लगती है। मतलब आपने अपनी जुबान को फ्लेक्सिबल रखना है ताकि जुबान थोड़ा सा प्रेशर में चल के थोड़ा सा आगे आए, तो वो बहुत अब 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 जुबान ट्रेवल करती है थोड़ा सा आगे, बाहर नहीं निकालना, बाहर नहीं निकालना, इधर तक के रखना है, वरना वो वाह पे चली जाएगी। ठीक है, जुबान को अंदर ही रखना है मुंह के, लेकिन ये सामने वाले जो दांत है ना, जो जुबान यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ ट्रेवल करती है, तो इसको कहते हैं इस्तिताला। सांस की प्रेशर में जो एयर फ्लो है उसकी प्रेशर में जुबान आगे की तरफ थोड़ा फिसलती है, जाती है, उसको हम इस्तिताला की क्वालिटी कहते हैं। और चूंकि साउंड भी साथ ही ट्रेवल करती है, तो जो साउंड जब ट्रेवल कर रही हो, एक जगह नहीं रुक रही, जो है ना, आपने उसको साथ ही प्रोनाउंस भी कर दिया, तो हम उसको कहेंगे रिखावा। ठीक है, वो सांस कि प्रेशर में जुबान का फिसल के थोड़ा सा आगे की तरफ जाना इस्तिताला कहलाता है। और उस प्रेशर में आपने आवाज भी फिर पैदा कर दी, जुबान जैसे जैसे फिसल के आगे गई, आपकी आवाज भी उसके साथ साथ आगे ट्रेवल करती है, तो हम उसको कहेंगे रिखावा। ये था बहुत का मखरज और इसकी इस्तिताला की क्वालिटी। तो आज हम इसको यहीं रोकते हैं इंशाल्लाह। लेट मी सी के कितनी मजीद जो है वो सिर्फ रह गई, जस्ट तकरीर, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। इसको कवर कर ही लेते हैं, फिर हमारी सिफात तमाम मुकम्मल हो जाएगी। तो तकरीर का कुछ हिस्सा तो मैंने आपको बता दिया रॉ का, कि इसमें तकरीर किस तरह पाई जाती है। वो जो नेचुरल रेपिटेशन है आपकी जुबान की, अपने मखरज पे जब जुबान ठहरती है तो सेंटर से आवाज पैदा होती है, और वो एक नेचुरल कपकपी या रेपिटेशन इसमें पाई जाती है, तो उसको हम एक नॉर्मल वाइब्रेशन कहेंगे, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर जुबान आपने अपने मखरज पे नहीं रखी हुई ना, तो फिर ये बार बार की जो तकरीर है ना, एक या दो से ज्यादा की, वो फिर गलत हो जाता है। वो फिर आपने एग्जैजरेट कर दिया, मखरज पे जुबान नहीं है, अर वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी, तो वो गलत है। तो हमने अर जुबान को अपने मखरज पे रखते हुए नेचुरल तकरीर देनी है। हाँ, वो एक और बात मैं यहाँ पे बयान करती रहूं कि आपने जुबान को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना अपने गमरिज पे। रॉ को अदा करते वक्त आपने अपनी जुबान को बिल्कुल ढीला रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, ताकि उसमें आप देखेंगे जिस तरह एक छांटा है ना, आप चांटे की मिसाल मैं इस तरह दे रही हूँ कि रॉ को अदा करते वक्त भी जुबान पीछे की तरफ फ्लिप करती है, तो वो एक छांटे जैसे, हम एक छांटे से किसी गधा गाड़ी जब कोई चला रहा होता है, तो वो अपने छांटे से अपने अपने गधा को या अपने जानवर को पीछे से एक जो है ना वो मारता है, या उसको एक चुबक सी लगाता है। तो वो क्या है कि हमने अपनी जुबान को भी उसी तरह पीछे की तरफ फेंकना है। और आप छांटा देखें वो कितना लूज होता है, कितना ढीला होता है, उसकी चुबक भी उसी तरह से ही जो है ना जोरदार भी पड़ती है। लेकिन जुबान को जब आप बिल्कुल ढीला रख के पीछे की तरफ फ्लिप करेंगे, तो आरो आरो उसकी तकरीर बहुत नुमाया और बड़ी आसानी के साथ आप अदा कर सकते हैं। जुबान को अगर आपने थिक किया, मसल को पुल करके जुबान को बिल्कुल खींच के अर्ब करेंगी, तो वो उसमें तकरीर नहीं आएगी, और एक थिकनेस ही पाई जाएगी, तो वो फिर आपका रॉ ठीक नहीं आएगा। होपफुली कि ये आपके लिए, आपको इसकी समझ आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। उस्ताद जी, मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चंस पे ले लीजिएगा।